નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 2 of chapter 4 HEAT, standard 7th science. In the last part we discussed that we cannot rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. And second thing we discussed was that a reliable measure of the hotness of an object is its temperature, and temperature is measured by a device called thermometer. So by which device we can measure the temperature, that is thermometer. Now in this part we are going to measuring temperature as well as will try to understand the thermometer. So let's discuss our next point, that is 4.2, measuring temperature. Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. जब भी हमें किसी को बुखार आता है, कोई फैमिली मेम्बर को बुखार आता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करना होता है और उसके लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है. ओके, एंड जो थर्मोमीटर that measures our body temperature is called clinical thermometer. Now hold the thermometer in your hand and examine it carefully. पहले आपको क्या करना है? Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request your friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. So let's see first of all this figure 4.2, then we will discuss further. See, here you can see there is a thermometer. Okay, let me zoom it. So this is a thermometer in which you can see here 35 degrees Celsius is there, and here 42. Here you can see 0 and C something is there, and here you can see 0 and F something like that. We will discuss about C and F. By this time just I want to make you understand or look at these things. Okay, we will come to know this is Celsius, or we can say degree Celsius, this is degree Fahrenheit, but we will discuss it later. Just you look over here. Here something you can see, this is a mercury. It is a bulb and in which there is a mercury, and this is straight line is there, that is a tube. Okay, and here this is 35, 36, 37, then 38, and in between you can see 10 marks are there. How many? 10 marks are there, and that you can see over here. See, here there is 37, then after small 5 marks, this big mark, and then after another 5 marks. So total from 37 to 38, in between total 10 marks are there. And here you can see 37, and then after small mark up to there you can see a dark line, that is a mercury level. And as there is 10 marks in between, that is why the measure is 37.1. What is the measure of this one? It is 37.1, and this is degree Celsius. Like this we can write, we should write. This is what? This is degree Celsius. Okay, so like that, and let's discuss further now. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. A clinical thermometer consists of a long, narrow,
uniform glass tube. It has a bulb at one end. Just I show it to you. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. अभी हमने वो देखा outside the bulb, और रीडिंग की भी बात की. Here you can see, okay, this is a we can say a shining thread of mercury. Okay, let's go further. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. देखो ये मर्क्यूरी थ्रेड बहुत पतला होता है, और अगर वो नहीं दिखता है तो क्या करना है, उसको थोड़ा सा रोटेट करना है, सो दैट के यू कैन सी इट. यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर के ऊपर स्केल भी होता है. द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. इसको कैसे रीडिंग करना है डिग्री सेल्सियस. ओके, इधर भी देख लेते हैं. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. अभी मैंने आपको वो थर्मोमीटर के ऊपर बताया. A clinical thermometer reads temperature from what? 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. इसके बीच का जो टेम्परेचर है वो ही वो दिखाता है, और या तो we can go for 35 degree Celsius to 42 degree only to measure that. Clinical thermometer can measure this much only. Okay, now here Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. अभी मैंने आपको उसमें 4.2 फिगर में दोनों बताया था, डिग्री फ़ारेनहीट एंड डिग्री सेल्सियस, है ना. तो बुझो का कंफ्यूजन क्या है? बुझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड. पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज एडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल. ओके, तो पहली ने क्या बोला? इंडिया ने एडॉप्ट किया है कौन सा? सेल्सियस स्केल. दैट इज वाई वी शुड रीड सेल्सियस स्केल. द अदर स्केल with the range for 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. ऐसे लिखना है डिग्री फ़ारेनहीट. इट वॉज इन यूज अर्लियर, पहले वो यूज में था. ठीक है, फिर देखो यहाँ पे फिर से एक बार रखा है सो दैट के यू कैन अंडरस्टैंड. जो नीचे है वो डिग्री फ़ारेनहीट है, ऊपर जो है वो सेल्सियस है, जो कि हमने डिस्कस किया अभी. Now activity 4.2, reading a thermometer. Before reading the thermometer, let's see this. Precautions to be observed while using a clinical thermometer. जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है. What are these? Thermometer should be washed before and after use. Thermometer should be washed before and after use. Preferably with an antiseptic solution. थर्मोमीटर को पहले और बाद में दोनों टाइम वॉश करना चाहिए, और दैट टू बी विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. ओके, फिर क्या है? एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री. अब जब हम उसको यूज़ करना है तो उसको पहले देख लेना है कि जो मर्क्यूरी लेवल है वो बिलो 35 डिग्री होना चाहिए. अगर उसके ऊपर अगर मर्क्यूरी थ्रेड दिख रहा है तो वो नहीं चलेगा. तो मर्क्यूरी थ्रेड लेवल इज बिलो 35 डिग्री होना चाहिए. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल और मर्क्यूरी एलोंग द लाइन इज स्ट्रेट. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी एलोंग द लाइन ऑफ साइट. मतलब हमें अपनी आंखों के सामने रखना है उसको. ठीक है, एंड दैट टू बी हॉरिजॉन्टली. एंड अभी वो हम फिगर देखने वाले हैं.
फिगर 4.3 जो अभी हम देखेंगे, सो दैट के यू विल कम टू नो हाउ टू रीड द थर्मोमीटर और उसको कैसे पकड़ना है, ठीक है। फिर हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। वो ब्रेक क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ग्लास का बना होता है। तो अगर इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट देन इट कैन ब्रेक। फिर डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। अब हम जब उसको रीडिंग करना है तो उसको बल्ब की ओर से नहीं पकड़ेंगे, उसके दूसरे छोर से पकड़ेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 4.2 रीडिंग ए थर्मोमीटर। लेट अस learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also note down the number of divisions. अभी देखिए हमने देखा था 37 और 38, तो उसके लिए दो बिगर मार्क्स थे और बीच में देयर वेयर 10 मार्क्स वॉज देयर, ओके। तो वो हमको मार्क करना है। पहले तो दो बिगर मार्क्स के बीच में छोटे मार्क्स कितने हैं, ठीक है। कभी कभी 5 भी हो सकते हैं। शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स, ओके। तो ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स दैट इज शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स, मतलब बिगर मार्क के बीच में स्मॉलर मार्क्स कितने हैं। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। सपोज जो बिगर मार्क है, सपोज वो 37 डिग्री दिखा रहा है और बाद में आगे भी वो थ्रेड है एंड देर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, मतलब 37 और 38 के बाद सॉरी इन बिटवीन 37 एंड 38 देर आर 5 थ्रेड्स, 5 डिविजन्स, मतलब क्या 5 मार्क्स आर है इन बिटवीन। देन 1 स्मॉल डिविजन कैन रीड, देखो अगर 37 के बाद छोटा जो मार्क है वो 1 है, वहाँ तक है, मतलब 1 मार्क है तो 1 ऑफ द मार्क आउट ऑफ 5, 1 ऑफ द मार्क आउट ऑफ 5 दैट इज 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 1 मार्क ऊपर जाता है छोटा तो 0.2 डिग्री, अगर 2 मार्क जाते हैं देन 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.4 डिग्री, ऐसे देखना है उसको। आई होप यू गोट दिस आइडिया। देन वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। अब क्या करना है, पहले तो उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना है, फिर उसको बल्ब के दूसरे छोर से, फ्रॉम द अदर हैंड ऑफ बल्ब, वहाँ से उसको होल्ड करना है, फर्मली होल्ड करना है। एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसको थोड़े से जर्क देने हैं। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। फिर ये जर्क देने से क्या करता है, इट विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। अगर वो 35 डिग्री से ज़्यादा दिखा रहा है तो भी वो डाउन हो जाएगा 35 से। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री, फिर देख लेना है इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब रीडिंग लेना है, उसका मेजर करना है अपने बॉडी का टेम्परेचर, तो कहाँ पे रखना है थर्मोमीटर, अंडर योर टंग। वहाँ पे अपना थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसको अंडर योर टंग रख देना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। आफ्टर 1 मिनट व्हाट यू विल डू, टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, जो भी रीडिंग है इज योर बॉडी टेम्परेचर। द थर्मोमीटर शुड ऑलवेज बी stated with its unit, that is degree Celsius. What did you record as your body temperature?
अपने बॉडी टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया आपने? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। देखो, जब भी हम टेम्परेचर लिखें तो उसके यूनिट के साथ लिखना है, मतलब 37 और बाद में डिग्री सेल्सियस भी लिखना है, मत भूलना है। नाउ पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गोट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री। अब ये जो बात है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। पहले यहाँ पे देखते हैं, लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन इस सेशन में चलिए देख लेते हैं थर्मोमीटर का रीडिंग कैसे लेना है। यू कैन सी शी होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम द डिफरेंट एंड ऑफ द बल्ब, दिस इज ए बल्ब, और यहाँ से पकड़ा है, ठीक है। और फिर थर्मोमीटर को कैसे रखना है? अपनी आई साइट के बराबर रखना है, ठीक है, दैट टू बी हॉरिजॉन्टली। करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, इस तरीके से थर्मोमीटर में से रीडिंग लिया जाता है, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन एंड आई होप you must have understood this session. Okay, we'll meet you in the next session. And ये जो पहली का confusion है वो दूर करेंगे next session में. Till that, watch this video 2 to 3 times. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.